तो अब आज से वैदिक एज कर रहे हैं। देखो, विदाउट एनी फर्दर अडू, द वर्ड वैदिक इज derived फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद विच मीन्स नॉलेज. द civilization that developed in India after Indus Valley civilization is called Vedic or Aryan age. Arya means great or high born. In classic Sanskrit, the word Arya means a noble man. The history of Aryans is mainly known from the Vedas. Generally, Aryans are said to be the author of Vedas. There is a difference of opinion on the place of origin of Aryans. Prominent historians have different theories on the homeland of Aryans. एक बार फिर से बता दे रहे हैं. The word Vedic is derived from Sanskrit word. The word Vedic is derived from Sanskrit word Ved, which means knowledge. So Ved basically means knowledge. And the civilization that developed in India after the Indus Valley civilization was the Vedic or Aryan civilization. So basically Vedic is synonymous to Aryan. Arya means great or highborn. In classic संस्कृत द वर्ड आर्य मीन्स नोबल मैन. संस्कृत में आर्य मीन्स नोबल मैन या हाई बॉर्न. अ हिस्ट्री ऑफ आर्यंस इज मेनली नोन फ्रॉम वेदास. जनरली आर्यंस आर सेड टू बी ऑथर ऑफ द वेदास. देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस. अब जैसे देखो, होमलैंड ऑफ आर्यंस तरह तरह के लोगों ने अलग अलग बात की है. जैसे दे बिलोंग टू जर्मनी, दिस वॉज सेड बाय हार्ट एंड पेनका. देन दे बिलोंग टू द वैली ऑफ द डन्यूब रिवर which is in Europe. So this was said by Giles. Giles said that they belong to the valley of the Danube River, whereas Penka and Hart, they said that they belong to Germany. Now Aryans were Tibetan people. That was said by Swami Dayanand Saraswati. And Bal Gangadhar Tilak said that Aryans belong to the North Pole region, whereas Max Muller said that they belong to Central Asia. And Gordon Child and Nehring, both of them said that the Aryans belong to southern Russia. And D.S. Trivedi said that the Aryans belong to Devika state. I don't know where is the Devika state. And Dr. Avinash Chandra Das said that they belong to the 7 Indus states. And Ganganath Jha, P. Ganganath Jha ने कहा था कि ये ब्रह्मर्षि देश से बिलोंग करते हैं. whereas LD कला ने बोला था कि the Aryans belong to the Kashmir और हिमालयन रीजन. तो इसमें से जो थोड़ा बहुत मेक सेंस, वो कौन कौन से हैं. एल.डी. कला ने बोला था हिमालयन या कश्मीर, वो थोड़ा सही लगता है. गॉर्डन चाइल्ड ने बोला था सदर्न रशिया, दैट इज़ ऑल्सो सीम्स करेक्ट. मैक्स म्यूलर सेंट्रल एशियन थ्योरी, दैट इज़ ऑल्सो प्लॉसिबल. गंगाधर तिलक नॉर्थ पोल, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगता है. स्वामी दयानंद सरस्वती बोला था तिब्बत. और गाइल्स ने बोला था ये कि वैली ऑफ डैन्यूब रिवर, वेयर एज हार्ट एंड पेनका ने बोला था कि द आर्यंस बिलोंग टू जर्मनी. Now Vedic age is divided into two parts, the Rig Vedic and the Pre-Vedic age. So Rig Vedic is synonymous to Pre-Vedic age, which is the earliest phase of the Vedic age that belongs to 1500 say 1000 BCE, and later Vedic age belongs to 1000 to 600 BCE. Now each of the Vedas is divided into 4 parts or sections. The correct order is सबसे पहले संहिता आता है, फिर ब्राह्मणास, फिर अरण्यकास और फिर उपनिषद्स. क्रोनोलॉजिकल इसी क्रम में ये किताबें लिखी गई थी. संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए थे. संहितास एंड ब्राह्मणास आर फ्रॉम द कर्म कांड सेगमेंट ऑफ द वेदास. अरण्यकास एंड उपनिषद्स बिलोंग टू द ज्ञान कांड सेगमेंट ऑफ द वेदास. ठीक है. दे एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, द लैटर टू. The history of Rigvedic age is also known as from Rigved. It is the oldest known book in the world, but scholars have dispute over its author and period of composition. Iron is not mentioned in Rigved, but is found in the later Vedic literature. तो initial Vedic literature जो ये 1500 से 1000 BCE वाला है, इसमें आर्यन का जिक्र नहीं हुआ है. बाद वाले में हुआ है, 1000 से 600 वाले में. There were 4 prominent rivers of Afghanistan, namely Krumu, Kubha, Gomati, Suvastu. Krumu, Kubha, Gomati, Suvastu. फिर से बोल रहे हैं. There were 4 prominent rivers of Afghanistan, namely Krumu, Kubha, Gomti and Suvastu, which are mentioned in the Rigved. It also mentions 7 rivers of the Sapta Sindhu, states that is a land of 7 rivers, Saraswati, Vipasa, Parushni, Vitasta, Sindhu, Shatudri, Askini. तो कुल मिला के 7 नदियों का भी जिक्र है. परुष्णी है, वितस्ता है. देखो V से 2 नाम आ रहे हैं. एक V से 2 नाम क्या आ रहे हैं, एक वितस्ता है और एक विपासा है. वितस्ता एंड विपासा. वेरस परुषनी और सरस्वती, एस से भी 2 नाम आ रहे हैं. सिंधु एंड शतुद्री. एक्चुअली एस से 3 नाम आ रहे हैं, सरस्वती, शतुद्री और
सरस्वती, सिंधु, ये एस से हो गए, 2 वी से आ रहे हैं, वितस्ता और विपासा, और ये 5 हो गए, और फिर पुरुषनी और अस्किनी, ये 2 7 हो गए टोटल, ठीक है। इनके अलावा क्रुमु, कुबा, गोमती एंड सुवस्तु, इनका भी जिक्र अफगानिस्तान के नदियों के रूप में किया गया है, वेयर एज दीज 7 बिलोंग टू द लैंड ऑफ द सप्त सिंधु, ठीक है, जो वही कश्मीर के आसपास पड़ता है। रिवर यमुना एंड गंगा आर मेंशन इन द ऋग्वेद 3 and 1 times ओनली रिस्पेक्टिवली। तो यमुना का जिक्र और गंगा का जिक्र, तो यमुना का जिक्र 3 बार हुआ है, यमुना का जिक्र 3 बार और गंगा का जिक्र सिर्फ 1 बार हुआ है। अ रिवर ऑफ कश्मीर मरुद वृद्धा इज़ ऑल्सो मैंशनड। तो पूछ सकता है कि मरुद वृद्धा क्या है। मरुद वृद्धा, दिस इज़ प्रॉब्ली आई एम हेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ रिवर इन द कश्मीर रीजन इन द वैदिक, अर्ली वैदिक, so that is also mentioned in the Rig Veda. Then river Indus is mentioned for the most number of times, while river Saraswati was the most sacred river, which was known as Mate Tama. तो Mate Tama, that is best of all mothers, ये सुब्राइक्वेट किसको दिया गया है, ये सरस्वती रिवर को दिया गया है। तो इंडस का जिक्र सबसे ज़्यादा बार हुआ है, ठीक है, सिंधु बेसिकली, इंडस नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा बार हुआ है, वेयर एज रिवर सरस्वती इज़ mentioned as the most sacred river, जिसको माटे टामा और द बेस्ट मदर्स का क्या बोलते हैं, एपिथेट भी दिया गया है। देन तो जैसे माते टामा है वैसे ही देवी तामा भी है, दैट इज़ बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेसेस, और नदी तामा भी है, बेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स। तो माते तामा, नदी तामा और देवी तामा, ये बेसिकली आई थिंक रिवर्स को ही डिनोट करने के लिए एपिथेट्स इस्तेमाल किए गए हैं। नाउ इंडस इज़ कॉल्ड द हिरण्यई, इस इंडस को हिरण्यई भी बोला जाता है फॉर इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। गंगा, यमुना, दोआब एंड इट्स adjoining एरियाज वर कॉल्ड एज ब्रह्म ऋषि देश बाय द आर्यंस। और इस पे थ्योरी किसने दी थी, कोई तो था जो ब्रह्म ऋषि, ये गंगानाथ झा ने बोला था कि द आर्यंस बिलोंग टू द ब्रह्मर्षि देश, दैट इज़ गंगा यमुना के दोआब वाले एरिया को ब्रह्मर्षि देश बोलते थे आर्यंस। दे गेव द नेम मध्य देश टू द एरिया बिटवीन हिमालय एंड विंध्याचल माउंटेन रेंजेस। और मध्य देश किसको बोलते थे, विंध्याचल और एमपी के बीच वाला जो इलाका है, दे गेव नेम मध्य देश टू द एरिया बिटवीन द हिमालयन एंड द विंध्याचल माउंटेन रेंजेस। तो हिमालय हो गया और बीच में इधर तो बेसिकली वही हो गया प्लेन वाला एरिया, उसको मध्य देश बोलते हैं। और गंगा यमुना दोआब जो अपर उत्तराखंड वाला इलाका, वहाँ पे तुम्हारा ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं, ठीक है। और इस पे थ्योरी गंगानाथ ने दी थी। अब इसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया को क्या बोलते थे, आर्यवर्त बोलते थे। देन रिवर्स ऑफ ऋग्वेदिक एज, अभी मैंने 7 नदियों के जो नाम बताए हैं, और एक और बताया था यूनिक नेम, क्या नाम था, मरुदवृहा वाज आल्सो मेंशन्ड एज रिवर इन कश्मीर एरिया, ठीक है। तो कुछ नदियां हैं जैसे हमने बताया था, अस्किनी है, विपासा है, परुषणी है, वितस्ता है, कुबा, क्रुमु, गोमती, सुवस्तु और शुतुद्री, इतनी तो हम लोग पढ़े हैं। इसके अलावा एक सदा नीरा याद रखो, गंडक वाज कॉल्ड एज सदा नीरा एंड दृष्टवती दैट वाज कॉल्ड एज घग्गर, ठीक है। तो फिर से बताते हैं, देखो, अस्किनी होता है चेनाब, विपासा होता है ब्यास, परुषणी होता है रावी, वितस्ता होता है झेलम। तो वितस्ता भूल सकता है, वितस्ता इज़ नथिंग एल्स बट झेलम। कुबा इज़ काबुल, क्रुमु इज़ कुर्रम, गोमती इज़ गोमल एंड सुवस्तु इज़ स्वाट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये एंशंट रिवर्स हैं, ठीक है, ये एंशंट रिवर्स और उनके नाम हैं। फिर से बता दे रहे हैं, अस्किनी चेनाब है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। अब देखो हम लोग ये रिवर्स कर चुके थे। अस्किनी इज़ चेनाब, विपासा इज़ ब्यास, परुषणी इज़ रावी, वितस्ता इज़ झेलम, कुबा इज़ काबुल, क्रुमु इज़ कुर्रम, गोमती इज़ गोमल एंड सुवस्तु इज़ स्वाट, सदा नीरा इज़ गंडक एंड शुतुद्री इज़ सतलज, दृष्टावती इज़ घग्गर, ठीक है। नाउ वैदिक लिटरेचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। अच्छा, वैदिक लिटरेचर जो बेसिकली 4 वेद संहिताएं हैं उनको श्रुति भी बोलते हैं। द वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर इन इंडिया। देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद आर कॉल्ड एज द वेद त्राई और त्राई। तो जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, वेरज जो आखिरी की अथर्ववेद है उसको हटा दो तो जो 3 बचती हैं उनको हम त्राई बोलते हैं, वेद त्राई, ठीक है। नाउ ईच वेदास हैव 4 पार्ट्स, और हर वेद में भी 4 फर्दर सब पार्ट्स हैं, जैसे संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद्स।
Now Rigved has 10 mandals, 1028 suktas and 10,552 verses. ठीक है, ये इतना वैसे पूछेगा नहीं, तो 10 मंडल्स ही पूछता है बस, और सुक्ता बेसिकली हिम्स होते हैं, 1028 सुक्ताज होते हैं, और 10,500 कुछ तुम्हारे वर्सेस हैं जिसको ऋचा भी बोलते हैं. देन 2 to 7 मंडल्स ऑफ द ऋग्वेद आर नोन टू बी द मोस्ट एंशंट. तो मंडल नंबर 2 से लेके 7 तक जो लिखा गया है दैट इज़ द मोस्ट एंशंट. ठीक, अब ये एक एक मंडल है, देखो टोटल 10 मंडल्स हैं और उसके जो ऑथर्स या राइटर्स हैं वो उनके नाम दिया गया है. तो देखो जो फर्स्ट मंडल है और फर्स्ट मंडल देख लो, इसमें दोनों जो ऑथर्स हैं उनका नाम एम से स्टार्ट होता है. एक का नाम है मधुचंदा और दूसरे का नाम है मेघतिथि. तो मधुचंदा और मेघतिथि का नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे वर द ऑथर्स ऑफ द फर्स्ट मंडल ऑफ ऋग्वेद. सेकंड मंडल ऑफ ऋग्वेद वाज रिटन बाय Grita Samada. So Grita Samada was the author of second mandal. Third mandal was written by Vishwamitra. The fourth mandal was written by Vamadev. Fifth mandal was written by Atri. Sixth by Bhardwaj. And seventh mandal was written by Vashisht. And eighth mandal was written by Kanav and Angiraz. कानवा भी याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा, कानवाज एंड अंगिराज. ठीक है, तो यही हम बता रहे थे कि सेकंड से लेके 7th मंडल तक सबसे एंशियंट रिटन मंडल्स हैं, वेयर एज फर्स्ट, सेकंड, 9th एंड 10th वर रिटन रिलेटिवली लेटर. ठीक है, 9th मंडल ये लिखा है अंगिराज एंड मेनी अदर स्कॉलर्स ने, तो वही है अंगिराज, वही हैं जो 8वें मंडल में भी अपना योगदान दिया है लिखने में. देन 10th मंडल ये देखो कई लोग ने लिखा है, इसमें विमादा, इंद्र और शची, 3 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट आता है, विमादा, शची और इंद्र. दे वर द राइटर्स ऑफ द 10th मंडल. ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, 4th वाला मंडल जो है वो वामदेव ने लिखा है, वामदेव. 5th वाला अत्रे, 6th वाला भारद्वाज, 7th वाला वशिष्ठ. और यही बेसिकली 3rd से देख लो, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3rd वाला किसने लिखा था, विश्वामित्र ने. 4th वाला वामदेव ने. 5th वाला अत्रे ने. 6th वाला भारद्वाज ने. 7th वाला वशिष्ठ ने. 8th वाला लिखा था कानव ने, और 9th वाला अंगिराज ने एंड मेनी अदर्स. एंड 10th वाला लिखा था इंद्र और शची ने. और फर्स्ट वाला लिखा था तुम्हारा मधुचंदा और मेघतिथि. और सेकंड वाला ग्रिटा समादा. ठीक है, ये लोग ऑथर्स थे. अब गायत्री मंत्र जो है दैट इज़ रिटन इन द 3rd मंडल. अब 3rd मंडल किसने लिखा था, यहाँ पे विश्वामित्र ने लिखा था. ठीक है, तो गायत्री मंत्र वहाँ से लिया गया है. इट इज़ रिटन बाय विश्वामित्र. इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सवित्रा दैट इज़ सूर्य. तो गायत्री मंत्र किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है, लॉर्ड सूर्य को या लॉर्ड सवित्रा को. नाउ ऑल 114 हिम्स इन द 9th मंडल आर डेडिकेटेड टू सोम. तो 9th मंडल में कितने हिम्स हैं ये भी पूछ सकता है, तो 114 हिम्स हैं. वैसे टोटल कितने हैं, तो 1028 हैं. 3 वर्नास आर डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य. द वर्ण शूद्र इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10th मंडल. ठीक है, और 10th मंडल में पुरुषा सुक्ता भी दिया हुआ है. तो देखो 9th मंडल में सोम को डेडिकेट किए गए हैं हिम्स. 10th मंडल में तुम्हें 2 कीवर्ड्स मिल रहे हैं, एक पुरुषा सुक्ता और एक शूद्र. ठीक है, ये सब 10th मंडल में ये दोनों कीवर्ड्स मिल रहे हैं. और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये जो वर्णास 3 वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये किस में दिया गया है. 3 वर्णास आर डिस्क्राइब्ड इन द बिगनिंग. तो ये इन द बिगनिंग ऑफ विच मंडल, ये देख लेना एक बार, गूगल करके कंफर्म कर लेना. द 3 वर्णास ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, दीज 3 आर गिवन इन द विच मंडल ऑफ ऋग्वेद. बाकी सोम और पुरुषा सुक्ता और शूद्र ये तो 10th मंडल में दिया है. ठीक है, और सोम तो 9th मंडल में, पुरुषा सुक्ता और शूद्र 10th मंडल में. देन देयर वाज अ प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेद कॉल्ड होटा. ठीक है, ऋग्वेद में द प्रीस्ट्स ऑफ ऋग्वेद वर कॉल्ड एज होटा. ठीक है, अत्रे एंड कौशिटकी आर 2 ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेद. तो अत्रेय और कौशिटकी ये 2 ब्राह्मण्स थे ऋग्वेद में. और अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 21 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद. पतंजलि ने फर्दर ऋग्वेद को 21 टुकड़ों में बांट दिया था. ठीक है, अब देखो ऐत्रेय और कौन था, एक ऐत्रेय और कौशिटकी. ऐत्रेय और कौशिटकी 2 ब्राह्मण्स अलग से स्पेसिफाई किया गया है ऋग्वेद में, जबकि कलेक्टिवली प्रीस्ट्स को हम लोग क्या बोलते थे ऋग्वेद में, होटा. फिर यजुर्वेद इन संस्कृत मीन्स विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूलाज. तो यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में लिखा है. दिस वेद compiled a century or 2 after the Rigved, contains prose and verse formulas that were to be pronounced by the priests performing a manual part of the sacrifice.
It describes in prose about the procedural details of performing different rituals and yajnas using the hymns of the Rigved. The Samhitas of the Yajurved is divided into two parts, Shukla Yajurved and Krishna Yajurved. ठीक है, Shukla Yajurved has a separate Brahman text written as Satpat Brahman. अब ये नहीं आएगा. Vajasneyi is the Samhita of Shukla Yajurved. ये भी नहीं आएगा. तो बस ये याद रखो कि शुक्ला यजुर्वेद में फर्दर 2 पार्ट्स हैं. एक वजस्नेयी है, वजस्नेयी, और एक क्या है, शतपथ ब्राह्मणा. ठीक है, दीज 2 आर फर्दर सब पार्ट्स ऑफ शुक्ला यजुर्वेद, वजस्नेयी एंड शतपथ ब्राह्मण. ओके, देन अब ये एक डिफ्रेंशिएशन है शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में कि शुक्ल यजुर्वेद इज़ अवेलेबल ओनली इन द पोएटिक फॉर्म. बहुत ही पोएटिक स्टाइल में शुक्ल यजुर्वेद लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पोएटिक एज वेल एज प्लेन टेक्स्ट में भी लिखा गया है. ठीक. नाउ द शतपथ ब्राह्मण जो हम बता रहे थे कि शुक्ल यजुर्वेद से बिलोंग करता है, इज़ अ प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग वैदिक रिचुअल्स, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी associated with Yajurved. In context of the ancient Indian Vedic literature, Shatpat Brahman has been placed just after the Rigved. It also describes social subjects including Vedic rituals. ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण और वजस्नेयी मैंने बताया था शुक्ल यजुर्वेद से बिलोंग करते हैं. Then it also describes social subjects in, ठीक है. Then पुरुषमेध has been mentioned in the Shatpat Brahman. अब ये बस रट लो, क्या करोगे. शतपथ ब्राह्मण जो कि शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, उसमें पुरुषमेध के बारे में लिखा है. तो शतपथ ब्राह्मण नरेट्स द स्टोरी ऑफ किंग विदेगा माधव, अ किंग ऑफ विदेहा accompanied by his priest गौतमा रहुगण. ठीक है, अब देखो शतपथ ब्राह्मण के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल दिया हुआ है. तो पहली बात तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद में है अलॉन्ग विद वजस्नेयी. तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद में है, और इसमें फिर हमने पढ़ा कि कृष्ण यजुर्वेद बहुत पोएटिक एज वेल एज प्रोज स्टाइल में है, वेरा शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पोएटिक स्टाइल में लिखा गया है. एक और चीज़ ये लिखी है कि ये शुक्ल यजुर्वेद जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो शतपथ ब्राह्मण आता है उसमें पुरुषमेध के बारे में भी लिखा है, एज वेल एज किंग विदेगा माधवा के बारे में भी लिखा है, और एक ऋषि गौतमा रहुगण के भी बारे में लिखा है. तो शतपथ ब्राह्मण में 3 पर्सन्स के बारे में लिखा है. एक पुरुष मेधा के बारे में लिखा है, एक किंग ऑफ विदेगा के बारे में लिखा है, और एक प्रीस्ट के बारे में लिखा है, ऋषि गौतमा रहुगण. ठीक है. नाउ किंग वॉज कैरिंग फायर, अग्नि, इन हिज माउथ विच ऑन इनसाइटेशन ऑफ हिज गुरु फेल आउट ऑफ हिज माउथ एंड बर्न द अर्थ टूवर्ड्स हिज ईस्ट. ये भी लेजेंड मेरे ख्याल से शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देयर वाज अ किंग, में भी यही होंगे, किंग विदेग, who was carrying fire in his mouth, which on incitation of his guru fell from his mouth and burnt the earth towards his east. तो ये हो गया यजुर्वेद. देन सामवेद की बात करें, इट इज़ द शॉर्टेस्ट among all the 4 Vedas. It is closely connected with the Rigved. It has taken many verses from Rigved. The Samved is compiled for ritual application. All its verses are meant to be chanted in ceremonies. तो ये chants में से भरा हुआ है, और इसमें कितना है वर्सेस, 1875 वर्सेस हैं तुम्हारे सामवेद में. बस इसमें ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर अथर्ववेद में आते हैं, ये लास्ट है. प्रीस्ट चांटिंग मंत्रास वर कॉल्ड ब्रह्मा इन अथर्ववेद. द फर्स्ट रेफरेंस टू द अंग एंड मगध इज फाउंड इन द अथर्ववेद, वेयर दे आर मेंशन अलॉन्ग विद गंधारी एंड मुजावट्स. तो गंधारी, मुजावट्स, अंग, मगध, ये 4 शब्द तुम्हें पहली दफ़ा अथर्ववेद में देखने को मिले थे. इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द रीजन ऑफ कुरु एंड पंचला वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर बिकॉज हेयर ग्रेट अचीवमेंट्स हैपेंड इन साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एंड फिलोसफी. तो पोस्ट वैदिक पीरियड में कुरु एज वेल एज पंचला, ये 2 रीजन्स याद रखो, यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ था, एंड इट वाज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर. ठीक है, क्योंकि पोस्ट वैदिक पीरियड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था. देन आयुर्वेद, दैट इज साइंस ऑफ लाइफ, अपीयर्ड फर्स्ट इन द अथर्ववेद. आयुर्वेद इज एन उपवेद ऑफ अथर्ववेद, ये भी हम पढ़ चुके हैं. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ उप अंग ऑफ अथर्ववेद. अथर्ववेद डिस्क्राइब्स थॉट्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ कॉमन पीपल. It comprises of various contents such as disease prevention, coordination, loyalty, marriage and love, poetry. और फिर एक और है जैसे गोपथ ब्राह्मण is the only Brahman associated with the Atharved. It is a genre of the prose text describing Vedic rituals. तो जिस तरह से शतपथ ब्राह्मण was a part of the शुक्ल यजुर्वेद, उसी तरह से गोपथ ब्राह्मण is a part of अथर्ववेद. ठीक है, the only ब्राह्मणा associated with अथर्ववेद. फिर लास्ट में उपनिषद देखते हैं. तो उपनिषद लिटरेचर इज़ नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट्स अ फिलॉसफी फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल. ठीक है, ये भी क्लियर है. उपनिषद लिटरेचर इज़ नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट्स अ फिलॉसफी फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल पीपल. द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बट इट्स मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स कंसेप्ट इज़ यूनिक.
The word salvation or moksha is not used in Vedas. It was firstly discussed in Upanishads. ये भी important सवाल है. Moksha means liberation. The continuous cycle of life and death is not an actual aim of the human soul. According to the Upanishads, the core of our self is not the body or the mind, but the Atman, that is the soul. Then Kathopanishad भी एक important Upanishad है, is the story of the conversation between Yama, that is the lord of death, and Nachiket, the young 12 years old boy who left home in search of the meaning of death and beyond. This is given in Kathopanishad. Then this forms the subject matter of one of the Upanishads called Katha or Kathopanishad. ठीक है. The phrase Satyamev Jayate is a Sanskrit word taken from the Mundaka Upanishad. तो यम और नचिकेत की बात तुम्हारे कठोपनिषद में दी है, जबकि ये सत्यमेव जयते तुम्हारा शब्द उठाया गया है मुंडको उपनिषद. द मीनिंग ऑफ द वर्ड truth alone triumphs. It was adopted as the national motto of India. It is inscribed in the script at the base of national emblem. National emblem के नीचे लिखा है truth alone triumphs. It was adopted by the government of India on 26th of January 1950. तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 26th of January 1950 को truth alone triumphs. ठीक है, national emblem. Then Satyakama Jabala, or simply Jabala, is a boy and later a Vedic sage who first appears in chapter 4 of the ancient Hindu text Chandogya Upanishad. तो ये भी पूछ सकता है कि जबाला बिलोंग टू विच उपनिषद, तो चंडोग्य उपनिषद. द फ्रेज तमसो माँ ज्योतिर्गमया इज ओरिजिनली मेंशन्ड इन द बृहदरण्यका उपनिषद. बृहद अरण्यका भी एक उपनिषद है. अब तमसो माँ ज्योतिर्गमया दैट इज मेंशन्ड इन द चंडोग्य उपनिषद. ठीक है. Now this phrase means lead us from the darkness to light or lead us from the ignorance towards truth. Tamsoma Jyotirgamaya, that is given in the Chandogya Upanishad. Sorry, that is given in the Brihadaranyaka Upanishad. ठीक है. चंडोग्य में तो जवाला के बारे में कहानी लिखी है, और मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते हैं. ठीक है. और कठोपनिषद में यम और नचिकेत के बारे में कॉन्वर्सेशन है. अब इसके बाद पुराणाज हैं. पुराणाज भी लिखे हुए हैं. दे आर द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म. देर आर इन टोटल 18 पुराणाज. अब इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो. नाउ श्रीमद् भगवत गीता की बात करें अगर, इट वाज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज ऑफन रेफर टू इन शॉर्ट एज गीता. ठीक है. महाभारत ओरिजिनली हैज़ 8800 श्लोक्स एंड इट्स ओरिजिनल नेम इज़ जया और जया संहिता. तो महाभारत का असली नाम तो जय संहिता है और इसमें 8800 श्लोक्स हैं. महाभारत टुडे हैज़ 1 लाख श्लोक्स एंड इज़ बिलीव टू बी रिटन बाय सेज वेद व्यास. तो यही पूछता है, श्लोक्स की संख्या तो नहीं पूछता है. ओरिजिनली वैसे देखा जाए तो 8800 श्लोक्स थे, बट आज की डेट में 1 लाख श्लोक से ज़्यादा हो चुके हैं महाभारत में. महाभारत का ऑथर का नाम वेद व्यास था और ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड एज जय संहिता. पुराणाज है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र एंड वंशानुचरित. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रट लो. पुराणाज जो 18 पुराणाज हैं हमारे पास, उन सभी में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं. ठीक है. क्या क्या है? तो पहला है सर्ग प्रतिसर्ग, सर्ग प्रतिसर्ग, वंश मनवंत्र, सर्ग प्रतिसर्ग, वंश मनवंत्र एंड वंशानुचरित. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें सभी 18 पुराणास में मिल जाएगी. अमंग दीज सर्ग एंड प्रतिसर्ग आर द नेचुरल क्रिएशन एंड रेनोवेशन. सर्ग एंड प्रतिसर्ग का लिटरल मीनिंग क्या होता है? नेचुरल क्रिएशन एंड रेनोवेशन, दैट इज कॉस्मोगनी. Once means the history of sage and god. Once basically means the history of god. Manvantra is meant for the period of different manus. ठीक है. Manvantra is literal meaning होता है the time period of different manus. And Vanshanucharit means genealogy of kings. ठीक है. bloodline of kings. ठीक है. That is Vanshanucharit. तो ये 5 characteristics तुम्हारी किसमें? सभी पुराणास में मिल जाएंगी. ठीक. फिर पंचजन suggested 5 specific tribes whose eponymous ancestors were the founders of the clans. तो पंचजन कह लो या फिर डायरेक्टली उनके नाम बता दो. These are पंचजन बेसिकली ट्राइबल हेड्स कह सकते हैं या ट्राइब्स के नाम. तो यादू, तुर्वासा, द्रुया, अनु एंड पुरु. फिर से बता दे रहे हैं उल्टे ऑर्डर में. अनु, पुरु, तुर्वासा, द्रुया एंड यादू. These were the पंचजन या 5 tribes during the Vedic age. There is an ancient story mentioned in the Rig Veda called Dashrajanya. That is the battle of 10 kings long before Ramayana. रामायण से भी पहले की बात है ये, दशराजन्य की बैटल. Now इसमें there lived a descendant of India's eponymous king Bharat. कोई भरत की राजा का डिसेंडेंट था
सूडाज एंड द ग्रेटेस्ट, बेसिकली इन्हीं की बैटल थी, भरत की साइड से कोई सूदास थे, उनकी बैटल थी, दैट इज़ कॉल्ड दसराजन्य. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सूदास वॉज हिज थम्पिंग विक्ट्री ओवर कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स. तो इसमें सूदास विक्टोरियस हो जाते हैं, दैट इज हु वॉज द डिसेंडेंट ऑफ भरत. नाउ मेनी हिम्स ऑफ द ऋग्वेद वर कंपोज्ड बाय women as well. They were called as Brahmavadini. The prominent amongst them were Lopamudra, विश्वावरा, सिक्ता, घोषा. आई थिंक अपाला भी इसमें था, मेंशन नहीं है. लोपामुद्रा, विश्वारा, सिक्ता एंड घोषा एंड अपाला. तो ये वेमेन राइटर्स ऑफ द ऋग्वेद थे. ब्रह्मवादिनी, इनके कलेक्टिव वर्क्स को ब्रह्मवादिनी भी बोलते हैं. लोपामुद्रा वॉज द वाइफ ऑफ अगस्त्य एंड फैमिली और कुल वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट. फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. तो हमने काफ़ी कर चुका थे. अब ये बता रहे थे कि कुछ वेमेन राइटर्स थे ऋग्वेदिक पीरियड में जिनकी कलेक्टिव कॉम्पोजिशंस को हम लोग ब्रह्मवादिनी कहते थे. एंड अ फ्यू ऑफ दीज वेमेन राइटर्स वर लोपामुद्रा, घोषा, क्या नाम है, विश्वावरा, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता एज वेल एज अपाला. नाउ लोपामुद्रा वॉज वाइफ ऑफ अगस्त्य एंड कुल या फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी. ठीक है, अब यहाँ से हमको करना है. Now Rigvedic society was a patriarchal society. It is known from Varun Sukt that a father can sell his child. The word, अच्छा ये भी important MCQ बन सकता है. From which of the book, from which Rigvedic book we can find out evidence of father being allowed to sell his own child? So it is Varun Sukt. The word yav mentioned in Rigved is used for the food grain barley, and the gold necklace was called as निष्का. निष्का मतलब होता था गोल्ड नेकलेस. ठीक है, नाउ कुछ टर्म्स हैं ऋग्वेदिक पीरियड में एंड देयर मीनिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड निवी, NIVI? सो निवी का मतलब होता था द क्लॉथ्स विच वर वॉर्न बिलो द वेस्ट, लाइक पैजामा हो गया, पैंट हो गया. ठीक है, वसाज मतलब क्या हो गया, क्लॉथ्स वॉर्न अबव द वेस्ट. तो निवी नीचे का और वसाज मतलब ऊपर. नाउ तक्षा मतलब होता था कारपेंटर ऋग्वेदिक टर्मिनोलॉजी में. ठीक है, तक्षा मतलब कारपेंटर, कर्मा मतलब मेटल वर्कर, और वेकनट मतलब मनी लेंडर. देखो वेंकट होता है, उसी को पलट दो, वेकनट मतलब होता है मनी लेंडर. एंड अरित्री मतलब होता है बोटमैन, नाव चलाने वाला, नाव चला. ठीक है, तो कर्मा मतलब होता है मेटल वर्कर. लोहार को हम लोग कर्मा बोल रहे हैं. आप ऐसे कर लो जैसे विश्वकर्मा होता है ना, तो उसका जो कर्म है वो उठा के इधर लगा दो तो लोहार मेटल वर्कर हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह से तक्षा हो गया. तो यूजुअली शर्माज आर द कारपेंटर्स. तो इसमें देखो SHA लग के आ रहा है, तो दैट मीन्स तक्षा मीन्स कारपेंटर. फिर वसाज हो गया, द क्लॉथ्स वॉर्न अबव द वेस्ट, वेयर एज निवी क्लॉथ्स वॉर्न बिलो द वेस्ट. एंड वेकनट ये मनी लेंडर थे, और अरित्री कौन थे, ये बोटमैन थे. ठीक है, गोल्ड नेकलेस को निष्का कहते थे, और यव ऋग्वेदिक टर्म्स में बार्ले को बोलते थे. और वरुण सुक्त नामक किताब से हमें ये पता चलता है कि द फादर कैन सेल हिज ओन चाइल्ड. राइट, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज मेनली रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ द नेचर परफॉर्मिंग यजनास. तो नेचर वर्शिप होती थी वैदिक रिलीजन में, एज वेल एज यजनास, सेक्रीफाइसेस का भी प्रेवलेंस था. द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन वाज इट्स पॉलीथीस्टिक कैरेक्टर इन विच अ नंबर ऑफ गॉड्स वर वर्शिप्ड. The Rigvedic Aryans worshipped nature with intense feeling and endowed it with animated soul. Vedic gods were mainly classified into 3 groups. तो आकाश के भगवान को वरुण बोलते थे, और मित्र भी बोलते थे, विष्णु भी बोलते थे. वरुण बोल लो या मित्र बोल लो, विष्णु बोल लो. सूर्य को भी बेसिकली आकाश से रिजेंबल किया जाता था. गॉड ऑफ स्पेस, इसको इंद्र और रुद्र, गॉड ऑफ स्पेस बोलते थे इंद्र और रुद्र को. और गॉड ऑफ अर्थ को बोलते थे अग्नि, बृहस्पति, सोम एक्सेट्रा. ठीक है, तो इंद्र हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल डेटी इन द ऋग्वेद. जो हमने अभी पढ़ा गॉड ऑफ क्या थे, वो गॉड ऑफ स्पेस थे. इंद्र हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल डेटी in the Rigved. Indra is called the Purandar, that is the destroyer of forts. Very large number of Rigvedic hymns, that is 250 hymns are devoted to alone Indra, that is the god of space. वरुण को भी बोलते थे वैसे, लेकिन इंद्र को, नॉट वरुण, रुद्र को बोलते थे गॉड ऑफ स्पेस. वेरस वरुण को गॉड ऑफ स्काई बोलते थे. वरुण, मित्र एंड सूर्य, विष्णु, these were the god of sky, whereas Rudra as well as Indra, they were the god of space and god of earth. सोम कह लो या अग्नि कह लो. ठीक है, सोम, अग्नि एंड बृहस्पति, these were the god of earth. इंद्र को पुरंदर बोलते थे. 250 हिम्स डेडिकेटेड टू इंद्र. देन उसके बाद कोई अगर
सबसे ज़्यादा हिम्स डेडिकेटेड था तो वो अग्नि को था। अब एक ये इंस्क्रिप्शन है बोगास कोई इंस्क्रिप्शन, ये टर्की में पड़ता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज़ अ मेंशन ऑफ 4 वैदिक गॉड्स नेम्ड इंद्र, वरुण, मित्र एंड नसत्याज। ठीक है, तो बोगास कोई इंस्क्रिप्शन ये टर्की में पड़ता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे कुछ वैदिक गॉड्स के नाम हैं इंक्लूडिंग नसत्याज, इंद्र, वरुण एंड मित्र। अब देखो, वरुण तो गॉड ऑफ स्काई है, इंद्र गॉड ऑफ स्पेस अलॉन्ग विद रुद्र, और वरुण एज वेल एज मित्र ये दोनों ही तुम्हारे गॉड ऑफ स्काई है ना। हाँ, according to ancient Hindu scriptures during Vedic period, the Hindu tradition recognized 4 stages of ashramas in human life, namely brahmacharya, grihast, vanaprastha and sannyas. In the context of ancient Indian society, vansh, gotra and kul are the words associated with the family system. The word kos is related to treasury, as Rig Vedic term gotra simply means cow shelter, that is herd of cows. Cow was considered aghanya during the Vedic period. Aghanya means not to be killed. This status of cow shows that how pious it was considered during the Vedic period. Cattle breeding was the most important economic activity of the Rigvedic period. Very important fact. Prayers were offered to increase the number of cattle. It was medium of exchange. Cow is considered as a deity in some suktas of Rigved. Then dharm and reet in the Vedic period appear as early as the Rigved. ये दो keywords जो हैं, dharm as well as reet. Usually dharm signifies cosmic ordinance, often in connection with sense of natural or divine law. Reet as such is closely related to universal harmony in which all things in the world have a proper place and function. ठीक है, the concept of rit या रीत, that is universal principle of natural order, is of Vedic origin. The rit has been the basis of Indian culture, legal theory, politics and philosophy. तो इस पे भी सवाल बन सकता है। देखो, जो एक तो कॉस्मिक और डिवाइन लॉ है उसको क्या बोल रहे हो? धर्म। ऋग्वेदिक टर्म्स में, कॉन्सेप्ट में धर्म मीन्स नेचुरल और डिवाइन लॉ, वेयर एज रित क्या है? इट इज़ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, जो आज भी कल्चर, लीगल थियोरी और पॉलिटिक्स को गवर्न करता है। देन वी हैव दिस गॉड वरुण वॉज अपोज्ड टू अपहोल्ड रित और नेचुरल ऑर्डर, दैट इज़ वाई ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज रीतास्यागोपा। रीतास्यागोपा। देखो, ये जो वरुण है बेसिकली द गॉड ऑफ स्काई, ये ऐसा कुछ रित को नहीं मानते थे, ये एंटी थे रित के, इसीलिए इनको रीतास्यागोपा भी बोला जाता है। Then most popular and prevalent system of governance during the Vedic era was inherited monarchy. ये इनका कुछ polity था, ठीक है, inherited monarchy. Although some examples of election by the people were also found, but general interest of the public was towards monarchy. During the Vedic era, the two institutions Sabha and Samiti has been mentioned as the controlling powers upon the autocracy of the king. The Sabha was the assembly of the learned, while Samiti was the assembly of the common people. ठीक है, the distinction between Sabha and Samiti cannot be made out with precision, but it is clear that Sabha and Samiti are clearly mentioned at least 8 times and 9 times respectively in the Rig Veda. According to Atharva Veda, Sabha and Samiti are the two daughters या twin daughters of Prajapati. ठीक है, twin daughters of Prajapati. Basically यहाँ पे प्रजापति को मेरे ख्याल से king से connotation हो रहा है, and the twin daughters basically जो check में रखते हैं king को, autocracy को, they are the Sabha and Samiti. ठीक है, अब ये कुछ keywords हैं, इसी पे प्रीलिम्स में सवाल बनता है। देखो, नीचे से करते हैं। तो जो किंग के घर का या दरबारी कह लो या किंग्स हाउस होल्ड का कीपर, जो उसको हम लोग शटा कहते थे, शटा विद अ के साइलेंट। उसके बाद इसको ऐसे कर लो कि पलागल कह लो, पलागल या पागल, तो पागल कह लो या पलागल कह लो याद करने के लिए, ताकि याद आ जाए। ये बेसिकली ऋग्वेदिक मैसेंजर हुआ करता था। फिर अक्षवाप ये अकाउंटेंट हुआ करता था। फिर भागदूद ये टैक्स कलेक्टर होता था। संग्रहिता ये ट्रेजरर होता था, संग्रह करना, बेसिकली ट्रेजर करना। फिर सूता ये हेड ऑफ द चैरियट आर्मी हुआ करते थे, रथों की जो आर्मी थी उसका हेड को सूत कहते थे, SUTA। फिर महिषी ये वाइफ ऑफ द किंग को महिषी कहते थे। एंड ग्रामनी ये हेड ऑफ द विलेज, एंड सेनानी हेड ऑफ द आर्मी, एंड पुरोहित ये एडवाइज़र ऑफ किंग। देखो, पुरोहित मतलब ये मत लगा देना कि कोई प्रीस्ट, ठीक है, एडवाइज़र ऑफ किंग को पुरोहित कहते थे। तो इतना हो गया। देखो, भागदूत यहाँ पे आ सकता है टैक्स कलेक्टर, और संग्रहिता ट्रेजरर, और सूत हेड ऑफ चैरियट आर्मी, महिषी वाइफ ऑफ किंग, ग्रामनी हेड ऑफ विलेज, सेनानी हेड ऑफ आर्मी, पुरोहित एडवाइज़र ऑफ किंग, अक्षवाप ये अकाउंटेंट, पलागल या पागल कह लो या मैसेंजर, और विद अ के साइलेंट शता KSHATA ये कीपर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड या किंग हाउस होल्ड। अब देर आर टोटल 16 संस्कार्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड, और
सबसे पहले होता है गर्भधारण, गर्भाधान, ये कंसेप्शन होता है, ठीक है। फिर पुंसवना, फीटस प्रोटेक्शन होता है, पुंसवना। तो गर्भाधान, फिर पुंसवना, फिर सीमंटोनयना, सीमंटोनयना दैट इज़ सेटिस्फाइंग द क्रेविंग्स ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, तो ये होता है सीमंटोनयना। फिर जटकर्मा, जटकर्मा दैट इज़ चाइल्ड बर्थ। फिर होता है नामकरण और निष्क्रमण, नामकरण और निष्क्रमण। नामकरण दैट इज़ नेमिंग ऑफ चाइल्ड एंड द निष्क्रमण दैट इज़ टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर अन्नप्राशन होता है गिविंग सॉलिड फूड, एंड देन शूडाकर्मा, ये होता है हेयर कटिंग, शूडाकर्मा। और फिर कर्णवेद, ईयर पियर्सिंग। और ये लास्ट नहीं है, ये विद्यारंभा दैट इज़ अ स्टार्टिंग एजुकेशन। उपनयन दैट इज़ सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती है, उपनयन। और वेदारंभा, ये स्टडी ऑफ द वेदास। एंड फिर ये होती है समवर्तन दैट इज़ रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ समवर्तन। और विवाह दैट इज़ मैरिज, एंड अंत्येष्टि दैट इज़ क्रीमेशन। तो देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही हो रहा है। एक छूट गया, दैट इज़ ये होता होगा केशांत। केशांत का मतलब भी नहीं दिया यहाँ पे, तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अब की बार उल्टा चलते हैं। देखो सबसे लास्ट में होता है तुम्हारा अंत्येष्टि दैट इज़ क्रीमेशन। फिर उससे पहले तुम्हारा होता है विवाह, उससे पहले होता है संवर्तन दैट इज़ रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, तो वो होता है संवर्तन। और हाँ, संवर्तन से पहले होता है केशांत, कुछ मेरे ख्याल से बाल काटने का होता होगा, केशांत। और वेदरंभा होता है स्टडी ऑफ द वेदास। और उपनयन होता है सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। फिर विद्यारंभा होता है स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन। कर्णवेद होता है ईयर पियर्सिंग। चूड़ाकर्मा होता है हेयर कटिंग। अन्नप्राशन होता है गिविंग सॉलिड फूड। निष्क्रमणा होता है टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ निष्क्रमण। और नामकरण होता है नेमिंग ऑफ द चाइल्ड। और जटकर्मा होता है गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। एंड इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है सीमंटोनयना दैट इज़ सेटिस्फाइंग द क्रेविंग्स ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। और पुनसावन दैट इज़ फीटस प्रोटेक्शन। एंड गर्भधाना दैट इज़ कंसेप्शन। तो ये 16 संस्कार हैं जो हिंदू में दिया गया है। नाउ नेम ऑफ द किंग्स हैविंग टेरिटरीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो ये भी ऋग्वेद में इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट में सम्राट बोलते थे राजा को, और वेस्ट की तरफ रूल करने वाले को स्वराट बोलते थे, ठीक है। तो स्वराट वेस्ट में, ईस्ट में सम्राट, ठीक। नॉर्थ में विराट, और साउथ में भोज, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब एक बच गया, दैट सेंटर, सेंटर में राजा, सिंपली राजा बोलते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये। बाल गंगाधर तिलक इन हिज बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट नॉर्थ पोल was the original home of the Aryans, although this theory of Tilak is not acceptable to the historians. तो ये हो गया हमारा थ्योरी। अगले लेक्चर में हम लोग MCQs करेंगे लगभग 100-150 वैदिक पे।